So at that moment of time, we can use a reference of global variable which resides outside of the foundation of any function, be it user defined function or be it the main method also. So यहाँ पे ये जो हमारा m इक्वल टू 10 है, ये भी एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही काम करेगा. So it is defined above all the functions, uh, and it works almost similar to what we have the global variables as a, b and z assigned over here inside the main method. ठीक है, एक छोटा सा रेफरेंस था, अब ये रन करने के लिए दिखा रहा है. नेवर माइंड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगेन फंक्शन या स्कोप ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक दो चीज और रह गया, उसको कंक्लूड करेंगे. नेट दैट्स a very important thing, something that is related to what we have learned in the very earlier phase of Python, that is list, tuples and dictionaries, all those kind of things. So how do we work with mutable and immutable type of values when we call them as arguments or parameters to a function? ठीक है ना. तो ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या म्यूटेबल या इम्यूटेबल या दोनों को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वो if I pass down a value and it's, let's suppose कि it's of a mutable type which can be changed. So does it take into consideration that okay, functions do take mutable type of values? If yes, then at what phases do we have the changes of values? Does it only occurs at local phase or the scope of the function, or outside of the scope of the function also? Okay. And again, if I take an immutable type which cannot be changed once provided, so how does it impact a function? एक फंक्शन का नाम हम छोटा सा रख रहे हैं f1 and passing down a variable a. Value received although I have taken a constant value x equals 5. हम लोग यूजर से भी इनपुट करवा सकते थे, but just to save a bit of time हम यहाँ पे यूजर से इनपुट नहीं लेके कांस्टेंट एक टर्म ले लिए. Okay. Function name is f1 and I'll pass it down value of x.
Okay, so the idea seems very clear. We have a variable whose value is 5. We print. Okay. Okay. So we have a variable at main method that's value whose value is 5, and we are printing that value before the function is being called. Then we call the function and pass down the value of x, and then we again do some task inside the function f1. After returning from f1, we also print the value of x again inside the main method. If we look at the function f1, the value of that received value variable uh, has been printed before doing any task inside the function. Then we perform some task, that is a equals a into 2, and then after that we again print the uh, value. Okay. uh, Before I run this program, any idea जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या क्या आएगा? Anyone who can lead us to the answer? सर फर्स्ट लाइन में वैल्यू बिफोर फंक्शन कॉल इज जो एक्स का वैल्यू हमारे पास है 5, देन हम जैसे ही f1 को कॉल कर रहे हैं एक्स का तो वो फिर चल जाएगा फंक्शन के अंदर, देन वो प्रिंट करेगा वैल्यू रिसीव्ड बाय द फंक्शन f1। तो ए तो क्योंकि एक्स का वैल्यू ए को पास किए हैं तो वो 5 आएगा, देन ए इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 10, देन प्रिंट होगा न्यू वैल्यू ऑफ ए इज 10। फिर वो सिर्फ फंक्शन से बाहर निकलेगा और ये जो लास्ट वाला हमारे प्रोग्राम का लाइन है वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन f1, फिर वहाँ पे एक्स का वैल्यू पास कर रहे हैं हम। तो सर यहाँ पे 10। Okay. Sarita, any other answer? No, sir. ठीक है, रन करके देखते हैं। सुप्रीमो ने जैसे बताया कि पहले प्रिंट करेगा 5, फिर 5, फिर 10 और फिर 10 इस ऑर्डर पे प्रिंट करेगा। वेटिंग फॉर। सर एक कंफ्यूजन लग रहा है ये लास्ट लाइन में, क्योंकि एक्स का वैल्यू ए हम अगर पास करवाते तब 10 करता है सर, तो शायद लास्ट लाइन में 5 करे। इसी को तो दूर करना है कि क्या है। आई थिंक भाई कुछ इश्यू है इसके साथ, ये काम नहीं कर रहा है। Connecting to server. Still connecting to server. I've changed the interface. Let's see. See, are you able to see the answer? Yes, sir. यस सर। देखिए, तो बेसिकली 10 जो है वो सिर्फ एक ही जगह प्रिंट हो रहा है, विच इज व्हेन वी आर यूजिंग इनसाइड द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसमें बताना ये था कि व्हेन अ ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू इज पास्ड डाउन टू अ फंक्शन, we just send a photocopy of that, duplicate of that.
Okay, in previously understood languages, we used to have the concept of call by value and call by reference. If I could give a reference of C and C++, where we used to have the concept of pointers, uh, there we used to pass down either the variable uh, or a specific value, both mean the same thing here, or we used to pass down the address of that variable through the concept of pointers. जावा ने आया तो जावा ने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हटा दिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न बट अगेन यूजिंग द concept of object we were able to still reach to that address pointers concept, sorry address reference concept. यहाँ पे क्या हम सिर्फ अभी वेरिएबल्स के साथ प्ले कर रहे हैं, वी आर नॉट रेफरिंग टू द एड्रेस ऑफ एनी स्पेसिफिक वेरिएबल. So when a variable or a variable's value is passed down to a function, it's just like we are extending a photocopy of that. So x value is 5 inside the main method and it will remain 5 inside the main method. Whatever happens to that variable's value inside the user defined function, it is immaterial, it does not changes, it does not impact any value of the value. It does not changes the value of that variable inside the main method, right? So 5 जब तक starting से चल रहा था, it will remain 5 जब तक कि हम उस 5 को हम update नहीं करते main method में. And again, the value that we have received inside the f1 function, we are printing initially what we have received. Then we are performing some task on that received value, and then at the same method, inside the same method, we are printing the result of that operation. So definitely if some updation might have occurred on that same variable, it might reflect over there. What if we could have returned the value, है ना, a equal to a into 2 करने के बाद हम print करते या print करने के बाद भी हम value return a कर देते, तो अगर हम रिटर्न ए करते तो उसका इम्पैक्ट तब भी एक्स पे नहीं पड़ता, बिकॉज जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो देयर माइट हैव बीन सम वेरिएबल, अ न्यू वेरिएबल. लेट्स राइट इट डाउन, है ना. लेट्स से रिटर्न ए. अब ये रिटर्न करो, देयर माइट बी अनदर वेरिएबल व्हिच माइट बी कैचिंग द रिजल्ट ऑफ दैट ए. तो यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं z इक्वल्स f1. अब रन करेंगे तो ये हम लोग को फिर से लास्ट लाइन में 10 दे देगा. ठीक, गॉट इट. So finally, Yes, if sir. we conclude that this value which we are doing with the immutable type, the value does not change. So ये एक रेफरेंस हो गया जहाँ पे हम लोग एक immutable type का वैल्यू पास कर रहे हैं to our function. And immutable का मतलब क्या हो गया कि impact will not reflect upon the actual function, actual value that has been passed to a function, right? ये तो बेसिक सा एक एग्जांपल. अगेन इसका बैकड्रॉप पे एक प्रोग्राम हम शेयर कर देंगे, ठीक है, इमेज शेयर करेंगे. उसमें दो चीज दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है एंड उसका पूरा वर्क फ्लो के मेमोरी में क्या हो रहा है वो चीज से बताया गया है. नाउ लेट्स रन अनदर प्रोग्राम जहां पे हम एक म्यूटेबल टाइप को देख रहे हैं एंड देन आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ. ओके, तो म्यूटेबल टाइप का हम लोग पहले डेटा टाइप क्रिएट करना पड़ेगा. तो म्यूटेबल टाइप में हमारे पास क्या है, इफ यू कैन रिकॉल, आई थिंक लिस्ट वाज म्यूटेबल टाइप, है ना. तो समवेयर डाउन द लाइन हम यहाँ पे कुछ लिस्ट के साथ प्ले डाउन करेंगे, एक वैल्यू लिस्ट के अंदर स्टोर करने का कोशिश कर रहे हैं और फिर वो वैल्यू को हम लोग देखते हैं अपडेट करके क्या उसका इम्पैक्ट मेन मेथड पे पड़ता है या नहीं पड़ता है. ओके, तो def f2 ml नाम से दे दें माई लिस्ट.
Sorry. शॉर्टकट मेथड में लिखते हैं. लेट्स suppose we have square bracket, isn't it? Square bracket, and then I'll give a simple value as 15. So I'm calling down the function f2 and उसको हम लोग list l1 पास कर रहे हैं. लिस्ट के अंदर भी फिर से हम लोग एक ही वैल्यू रखे हैं. उससे हमारा बस पता चल जाएगा कि अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है. How do you list value inside name after calling the function is L1. ओके, रन करके देखते हैं पहले. Okay, so we started with line number 6, L1's value as 15. Current list print कर रहा है L1 का वैल्यू that is 15. कोई इशू नहीं है. F2 equals L1. L1 में हम लोग कुछ अपडेट करते हैं. ठीक है, न्यू वैल्यू आफ्टर अपडेशन 17. Okay, and then the same thing is being reflected upon the main method. Both of you, are you able to find out the difference between the previous program and this one? सरिता? यस सर. ठीक है, बेसिकली नॉर्मल वेरिएबल को जब हम पास कर रहे थे या कोई भी वैल्यू जो कि इम्यूटेबल टाइप का होगा उसका उस पे या जब उस वैल्यू को पास करते तो उस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है व्हाटएवर चेंज वी डू इनसाइड द फंक्शन.
that change remains only inside the called function. उसका impact जो है वो main method पे reflect नहीं करता है. But on the other hand, if we are working with a mutable type of value and passing down a mutable type of value to a function, so whatever update we do on that mutable type does reflect on the value inside the main method also. इस बात से अगर लोग एक चीज कंक्लूड करें, ठीक है, इम्यूटेबल टाइप जब हम काम कर रहे थे, इससे सजेशन यही मिल रहा, समझ में यही आ रहा है या हिंट यही मिल रहा है कि इम्यूटेबल टाइप में हम लोग वैल्यू का एक रेफरेंस पास कर रहे हैं, है ना, वैल्यू को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, मतलब उसे एक डुप्लीकेसी पास कर रहे हैं, रेफरेंस तो नहीं बोलना चाहिए, उसका डुप्लीकेसी एक पास कर रहे हैं, फोटो कॉपी भेज रहे हैं, ताकि जो भी इम्पैक्ट उस डुप्लीकेट कॉपी पे पड़े दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड अपॉन द एक्चुअल डेटा. ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम वर्किंग विथ म्यूटेबल टाइप वैल्यू, यहाँ पे हम लोग सेम मेमोरी लोकेशन पे काम कर रहे हैं. When L1 equals 15 I have written, तो जैसे वो लाइन इंटरप्रेटर रीड किया होगा तो L1 एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बना करके उसमें 15 एक वैल्यू इंडेक्स 0 पे रखा होगा. So when that L1 is passed down to a user-defined function, ML receives that. Okay, and instead of creating a new instance, instead of creating a new memory space, it works upon the same memory space. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि सेम मेमोरी स्पेस पे काम कर रहे हैं, so whatever update you perform inside the user-defined function on that object, the same will be updated inside the L1 object also. So because we are working on the same memory space, whatever change you make, that will be impacted and you lose out on the previously stored data. 15 जो हमारा था, लाइन नंबर 7 तक ठीक था, 8 तक ठीक था, ओके, एंड देन अगेन लाइन नंबर 2 तक भी ठीक था, बट लाइन नंबर 3 में जैसे आए ml ऑफ 0 इंडेक्स 0 पे क्या किया, वो +2 कर दिया. उसके बाद से लाइन नंबर 3 से ही क्या हो गया, हमारा जो L1 में एक्चुअली जो डेटा था दैट हैज बीन अपडेटेड टू 17, एंड उस लाइन के बियॉन्ड हम जब जब L1 या उसका रेफरेंस यूज कर रहे होंगे हमको 17 मिलेगा, जब तक कि फिर उसको रीअपडेट कोई नहीं कर देता कहीं पे. तो चाहे आप फंक्शन के अंदर एक्सेस देख रहे हो या फंक्शन के बियॉन्ड देख रहे हो, जब उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं उसके बियॉन्ड से उस म्यूटेबल टाइप का वैल्यू जो है अपडेट होकर के एक जैसा ही रहेगा. तो विच वन इज बेनिफिशियल, ये एक तो बड़ा अच्छा सवाल आता है कि विच वन इज बेनिफिशियल, कौन सा यूज करना बेहतर रहता है. ऐसा जगह जहाँ पे वैल्यू अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अब हम मेमोरी सेव कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एन एक्स्ट्रा और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस. तो विथ रेफरेंस टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहाँ पे हमारा मेमोरी स्पेस बहुत लिमिटेड स्कोप में अवेलेबल रहता है, वी आर कॉन्स्ट्रेंट ऑफ memory space availability. At that place, it's beneficial to use mutable type of object. But जहाँ पे ऐसा है कि हमको actual value and updated value दोनों को ही प्रोसेस करना है, दोनों को रिटेन करके रखना है. At that scenario, on those points we use the immutable type of values. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. इसका एक और रेफरेंस के लिए हम एक मैम के साथ शेयर कर दे रहे हैं. I think मैम will forward it out to all of you. Go through it thoroughly. 3 ये पेज के है ये चीज, ठीक है, बहुत सिंपल है. And it's the reference of what we were doing in the previous class, जो पेंट विंडो पे बना करके हम दिखा रहे थे, उसके रेफरेंस पे ये मिल जाएगा. ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है और उसके 2 रेफरेंसेस दिए हैं मेमोरी में, ये कैसा दिखाई देगा. तो इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे.
ओके ना, फंक्शन में इतना कुछ तो हम लोग देख लिए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज पाइथन में मिलता है, एंड अगेन इसके बारे में आई थिंक एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पाया गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्डा। Anyone who knows anything about lambda function or what exactly is the term lambda? नो सर। No idea. Okay. एक एक क्लास में सर आपने बताया था लैम्डा, फिर एक आपने क्वेश्चन दिया था तो उसको मैं सॉल्व कर रही थी टप्पल वाले में, वहां पे लैम्डा फंक्शन यूज किए थे, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। Okay. एक सिनेरियो देखते हैं, आई डोंट नो हाउ मच कैसे ये रिलेटेबल लगेगा। एक टीचर को नया क्लास असाइन किया गया, जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं एनरोल करते हैं, सो देयर आर लेट्स से 10 स्टूडेंट्स इनसाइड अ क्लास, एंड 10 तो बहुत कम लेते हैं, लेट्स 40 स्टूडेंट्स आर देयर इनसाइड अ क्लास, एंड टीचर एंटर्स on the very first day. Teacher sees that there are so many students, and टीचर इज नॉट इन अ मूड के वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन करे, ना टीचर अपना नाम बताए और ना ही स्टूडेंट्स का नाम जानने का कोशिश करे। टीचर स्टार्ट टीचिंग, वो अपना काम करने लग जाते हैं विदाउट नोइंग के या without informing कि who am I, what subject I'm supposed to take. So only based on the timetable, students are guessing कि okay first period में ये टीचर का ये सब्जेक्ट होना था, let's take a wild guess कि ये वही टीचर होंगे, एंड उस assumption पे वो पूरा क्लास चला जा रहा है कि हाँ ये वही टीचर है। Nobody knows, right? Nobody knows क्या हो रहा है यहाँ पे। So ये क्या हो गया, एक तरह का एनोनिमिटी हो गया, एनोनिमस। वी डोंट नो हु इज टीचिंग, ओके, जस्ट वी आर फॉलोइंग द पाथ कि ओके समबडी इज टीचिंग समथिंग एंड वी नीड टू फॉलो दैट थिंग without knowing the name of that teacher, without knowing the reference of that teacher, we are simply following the entire class duration में follow कर रहे हैं, whatever is being taught we have to follow that. Similar to that, अब तक हम लोग जितना भी फंक्शन बना रहे थे, we were creating by the keyword def, and we used to have a function name. Irrespective of वो फंक्शन कितना छोटा है कितना बड़ा क्यों ना हो, हमारे पास क्या था वहाँ पे, हम लोग को हमेशा रूल था कि फंक्शन अगर क्रिएट कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन तो डेफ कीवर्ड से होगा, फंक्शन नेम होगा, एंड अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हैं तो वो पैरामीटर्स आपको लगाने होंगे, है ना, जैसे अभी प्रीवियसली रिटन प्रोग्राम में हम लोग देख रहे थे। इफ आई कुड शो यस दिस वन, बट पाइथन हम लोग को एक फ्लेक्सिबिलिटी और क्या दे रहा है, ऐसे तो काफी फ्लेक्सिबल हो गया, एक और फ्लेक्सिबिलिटी क्या प्रोवाइड करे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एंड इट्स यूज, कि अगर आप बहुत बेसिक सा कोई काम के लिए फंक्शन बना रहे हो, ठीक है ना, अगेन रिपीट, अगर आप कोई बहुत बेसिक सा काम के लिए, बहुत बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए फंक्शन क्रिएट कर रहे जिसका काम सिर्फ 2-3 लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है, you are not supposed to create that much amount of line of code just to perform a simple task. आप उसको एनोनिमस रख करके, मतलब अननेम्ड रख करके, एक लैम्डा फंक्शन के सहारे से सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पास करो, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, whether it be of on mutable type or on और ऑन इम्यूटेबल टाइप, ठीक है, और वो एक सिंगल वैल्यू एट द एंड रिटर्न करेगा। तो इट कैन टेक n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इट कैन वर्क अपॉन दोस
values and at the end it will return only a single value. ये बात बोलना बहुत जरूरी है, इट विल ओनली रिटर्न सिंगल वैल्यू, बिकॉज हम लोग प्रीवियस टू दैट क्लास हम लोग देख चुके हैं कि एक फंक्शन जो है मल्टीपल वैल्यूज भी रखने का कैपेबिलिटी, रिटर्न करने का कैपेबिलिटी रखता है इन पाइथन। हम स्क्वायर वाला एक क्यूब वाला एक एग्जांपल रेफरेंस देखे थे, इफ यू कैन रिकॉल। तो पाइथन में ये चीज का स्कोप है कि मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कराया जा सकता है। ऑल्दो मल्टीपल वैल्यू जो बोल रहे हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली कि एक से ज्यादा वैल्यूज एक बार में रिटर्न करा, बट रादर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज कैन बी रिटर्न। ठीक है ना, ये बोलना ज्यादा ऑप्टिमल होगा कि डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट ways of returning the values is possible, but ultimately हम एक ही वैल्यू ही रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब इसका रेफरेंस, तो इसका फिर से हम डेफिनेशन बोल, इसमें क्लिक पॉइंट है, क्या है कि कोई छोटा फंक्शन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट 3-4 लाइंस वी कैन यूज लैम्डा फंक्शन, और उसके थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं। मैं जो टर्म बोल रहे छोटा फंक्शन होना चाहिए, हु डिफाइंस कि छोटा का साइज क्या होगा? सर 2 लाइन का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत छोटा है, सर 1 ही लाइन का होने से अच्छा था, सर 5 लाइन को भी हम छोटा मानते हैं, मेरे लिए तो सर 50 लाइन भी छोटा ही है, हम तो बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाए हैं। तो ये जो बिग स्मॉल लिटिल हम ये जो लेते हैं टर्म्स, ये तो क्लैरिटी तो उसमें है नहीं कि भाई कितने लाइन्स का प्रोग्राम होगा जिसको हम लोग स्मॉल या बिग कंसिडर करेंगे। तो who takes the call on these things? क्या प्रोग्राम में कुछ रूल्स बना हुआ है? यूजुअली लैम्डा फंक्शन हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशन, इफ आई मे से कई दो नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक सा अगर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर के इफ यू कैन एक फंक्शन आप बना रहे हो और उस फंक्शन अगर आपको लगता है कि आप इसको कॉन्साइज करके मिनिमाइज करके इसको 2 लाइन 1 लाइन में लिख सकते हो, या जो फॉर्मेट जो लैम्डा फंक्शन का आता है उसके बेसिस पे अगर लिख सकते हो, देन दैट्स फाइन। ठीक है, तब हमें कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं कि 4 लाइन या 5 लाइन का होने से ही ये लैम्डा फंक्शन के क्लासिफिकेशन को बिलोंग करेगा या उस पर बन सकता है और उसके बियॉन्ड जाने से नहीं बन पाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द यूजर और द क्रिएटर। इफ यू थिंक कि आपने जितना भी लाइन लिखा है प्रोग्राम का उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेट ऑफ द लैम्डा फंक्शन, देन इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, ये चीज है। एक रेफरेंस लेते हैं छोटा सा। ठीक है, कल में प्रोग्राम बना लेते हैं एंड देन वील सी पहले इसको रन करके देख लेना चाहते हैं। See, I have created only 2 lines of the program and इससे वो रिजल्ट आपको दे पा रहा है। Now how does this work? ठीक है, ये लैम्डा के साथ जो लिखा गया था n:n+4, ये क्या है?
if I explain it in a reverse order, see print से हम लोग start अगर कर रहे हैं, just to have an understanding कि operate कैसे किया. Here we are calling an add function, है ना. एक add function को हम एक value numeric value 10 pass कर रहे हैं. Okay. Although add is not a function, rather add is a variable over here. Right, add is a variable over here. But it's calling this lambda function, okay, जहाँ पे इस n को वही वैल्यू मिल रहा है जो हमने यहाँ से पास किया है add को. So whatever value they have passed down to add, the same value is being received by this n. Now after calling, it informs what needs to be done with that value. So n is for receiving the value, and then after calling we have what task needs to be done. It's like merging 2 or 3 lines of statement and combining them, merging them all together in a single compressed line. Here, function का name कुछ है, we don't have any name of function. अगर इसी प्रोग्राम को हम लोग बना रहे होते फंक्शन के थ्रू, है ना, फंक्शन के थ्रू अगर हम बना रहे तो कुछ इस तरह का बनता, def function name, let's say add, right? If add is not a, then I could have passed down let's say single parameter, जैसा वहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे हम लोग करते sum equal x plus 4, okay, and नीचे print कर देते, print sum, right? ये तो यहाँ तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमको तब फंक्शन मेन भी तो बनाना था. तो यहाँ पे हम फिर लेते हैं एक वेरिएबल से पास करते x ले लिए s equal let's say 10, you can have 10 pass किए हम लोग, and then I could have simply passed it down to add s, isn't it? ओके, इसको हमको स्टॉप कर देना चाहिए था. I'll change down the value because हमको समझ नहीं आ रहा वो रन किया है नहीं किया. कोड विंडो विजिबल है क्या? नो सर, लेफ्ट हो गया है वो.
Okay, never mind. See to that. So that was the concept. एक दो प्रोग्राम और भी हम लोग देख सकते हैं लैम्डा फंक्शन का, बट एनी कुछ रेफरेंस समझ में आया कि लैम्डा फंक्शन यूज क्या है, क्या पर्पस क्या था? यस सर, ये जो हम लोग नॉर्मल कर फंक्शन बनाकर जब कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ लाइंस मेरा काफी ज्यादा है, बट लैम्डा फंक्शन के यूज से देख रहे हैं कि हमें ऐसा कोई अलग से वेरिएबल नहीं लेना पड़ रहा है, फिर उसको पास नहीं करना है, बट लैम्डा में वो वहीं पे ऑपरेशन करके डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहा है जो भी ऑपरेशन करना है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हम लोग क्या फंक्शन जो हम लोग खुद से बना रहे हैं वो बहुत ही लेम वे है फंक्शन बनाने का। झूठ मूठ का आप एक छोटे से काम के लिए लाइन एक्सटेंड कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उस चीज में। इंस्टेड ऑफ दैट इट सेज के व्हाई डोंट यू कट शॉर्ट मिनिमाइज इट, एंड इट्स नॉट लाइक एवरी प्रोग्राम में हम लोग को फंक्शन का एक नाम चाहिए ही चाहिए, आप उसके बिना भी काम कर सकते हो। सो इसका पर्पस बहुत ही एफिशिएंट है लैम्डा का। अगेन हम इस बात को फिर से डिक्लेयर करना चाहेंगे, हम लोग तो बोल तो दिए कि छोटे टास्क के लिए लैम्डा फंक्शन होता है, बट ये छोटा जो टर्म है ये बहुत ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। आप हो सकता है कि सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाला अगर ऑपरेशन अगर आप उसको मिनिमाइज कर सको, किसी तरह से आप अपने एक फंक्शन को जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, सपोज उसमें n नंबर ऑफ लाइन्स है, आप उसको अगर मिनिमाइज कर सकते हो एंड इफ यू बिलीव कि हाँ लैम्डा एक्सप्रेशन को लिखने का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अगर हम इसको बना सकते हैं देन डेफिनेटली वो काम कर जाएगा। इट जस्ट नीड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। आई डेफिनेटली बिलीव कि एक सिंपल सा एग्जांपल सफिशिएंट नहीं उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, बट एटलीस्ट क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो आई थिंक वी हैव सम पर्सपेक्टिव व्हाट एग्जैक्टली इज लैम्डा फंक्शन। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड सम नोट्स आल्सो रिगार्डिंग दैट कि लैम्डा फंक्शन है क्या, ऑपरेशन कैसे करता है, कुछ लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन है भी या नहीं, वो सब चीज का नोट्स थोड़ा प्रोवाइड कर देंगे आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे। सो विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ फंक्शन। दो क्लास और हमारा चलेगा फाइल हैंडलिंग के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिस्टम अभी अगर काम कर रहा हो तो सही से तुम फाइल हैंडलिंग कैसे बेसिक स्टार्ट कर देते, इट्स नॉट वर्किंग। डू वी हैव 10 to 15 मिनट्स मोर, कैन वी टेक? प्रेरणा सही से? हाँ सर थोड़ा सा ये हो रहा है इसलिए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग दीपावली के बाद ही फिर मिल रहे हैं, ठीक है। डू एंजॉय योर फेस्टिवल, हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे तो